यार अबे ओ डंगर बात सुन, गालियां निकालने की बजाय बात करेगा कि नहीं? नेक्स्ट टाइम आना तो बात कर लेना, मैं पूछना चाहता हूँ तुझसे कुछ चीजें। चलो, इशाक जो है ये उज्बेकिस्तान से जुड़े हुए हैं। इशाक साहब, Oh yeah, hello. हेलो, हाउ आर यू? I'm very good. I was in Telegram. My friend told me that you guys are trying to do something new, so I came here. आर यू लाइक And ओके? आर यू मुस्लिम बाय द वे? yeah, yeah, I'm from Uzbekistan, so I'm Muslim. No, no, all Uzbeks are not Muslims by the way, you know that very well. Yeah, but we are like mostly Muslim. Yeah, I'm Muslim. Yeah. So I don't think you can comprehend anything what we said because we are speaking in Hindi and Urdu, right? Oh, well, yeah, he told me you guys will speak in English, so Yeah, we can. But right now you haven't understood anything what we were talking about, right? yeah, I didn't. All right. So what were you talking about in Instagram? What was the topic that somebody In sent you Telegram, in? he was trying to say something like there is no Big Bang theory in Quran. So he Do told you me think they can explain it. do you think there Big is Bang Big Theory. Bang Theory? Do you think there is Big Bang Uh, Theory in well, Islam? yeah, I done some research and I found that wait, Sorry? uh, You find what? yeah, 2130. The Okay. heavens and the earth 2130. were joined. Yeah, the heavens and the earth were joined together as one unit before we clothe them from asunder. Yeah, that's the thing I think Islam says something about Big Bang Theory. Hmm. So what do you think about it? This is stupidity. Do you Why? believe in Big Bang Theory? I believe in Quran, so yeah. No, no. Do you believe in Big Bang Theory? I'm not asking you to believe in Quran or not. That's not my question. My question is, do you believe in Big Bang Theory? Well, people say that humans were created like in some kind of explosion. So, well, People I say, so it's believe in not that. proven, right? Yeah, we can't say. Yeah, it's not proven. It's not proven, right? Well, yeah, it's not. Okay, perfect. So, but you think that this theory, which some people say that this is how the world was created, is in Quran, yet you know this theory is not proven. And in 2022, there is a new research based on a new satellite telescope came and they actually rejected this theory. Do you know that? Because this is science. Oh, well, Science always prove and disproves things with the passage of time, right? I agree. Yeah, but the scientists will change that. They say they'll change every decades. So we can't truly trust science and scientists. Okay. But yeah, Do, yeah. do you know Nowadays, about the James Webb? Do you know about the James Webb Space Telescope? no, I don't. Okay, go search on the internet whenever you can. When you go out of this StreamYard, you can search on it at a later time. That when when we built this James Webb Space Telescope, we realized that this world is not created by Big Bang theory, and it's a false phenomenon. And people are Oh, having right now. The scientists are having debates on this. FYI. oh, that's something great to know. All right. So now coming back to this Quran verse. Now let's go and research on the Quran verse. You said this verse is giving you Big Bang theory. Assuming that the Big Bang theory is correct, which it is not at this moment, look what Allah is saying. He have those who would disbelieve, not see. Why do they say Avalam Yarallazina? Yarallazina. Yar means يرى means see. Have they not seen? Not considered. This is a fake translation. But anyhow, doesn't matter. That the heaven and the earth were joined entirely. It's not heaven. It says samawat, which means sky. Wal arz and zameen, the earth, were joined together. Do you think the Big Bang theory, when it got the first bang, bang shebang,
that is something that created space, or Mm, the big ball which bursted into many pieces was already in space? I think the first one. Sorry. The first one you said, So not the this boss. whole universe was in that big ball, and the big ball was inside a space, right? So sky was already there, and the earth was part of a very tiny particle of that particular big massive ball of energy. Whereas here Allah is not talking about creating the galaxies and the everything. Allah is only talking about the samawat, the sky, and the earth. How can this be big bang? You are a very knowledgeable person, you know English very well, probably you have studied there as well in school, probably you have studied big bang theory because you are proving it from the Quran. Yet when you see the Quran, it doesn't talk about any galaxies, it doesn't talk about the solar system, let alone galaxies. Allah is talking about just the earth and the sky. And do you think sky was ever connected with the earth? What is the sky? You are already in a ball, a massive ball of rock which is hanging inside the sky, the space. So you are still connected with the sky. The earth is still connected with the sky. Sky is not separated from the earth. Like, have you ever seen, can you actually go inside the sky? When you're walking on the floor of the earth, you are already in a sky. It's a ball which is hanging in the middle of a space. Then how did Allah separated the sky with the earth? That's the question, yeah. But I think the heaven is bigger than the sky, maybe. Heaven is nothing. Allah only used one word of Quran, which is samawat. That's it. Sama is sky. Full stop. There is nothing called heaven. This is Sahih International Translation. If you read this same translation in other English translation versions, you will see sky as well. Read Pikhtal Khan or Yusuf Ali or some other translation. Samawat, sama, comes from the Arabic word sama, which means sky. Full stop. Nothing more, nothing less. No, that's a new thing for me. In If you read the Sahih International Translation, wherever the word samawat is, Sahih International translates it as heaven, and wherever it is the word Jannah, it translates it as garden, not heaven. Heaven is an English word which usually gets translated as Jannat or Jannah, but the Sahih International Translation actually uses, there are something which is called base theme. When you are reading a translation, you need to know that it's an English translation and they're using equivalent words. Sahih International Translation uses an equivalence word for the garden as for Jannah, and for samawat it uses the words heaven. So it's the standard across Sahih International Translation. You will see other translations using in a different terminology, but at the end of the day, this is not heaven, this is not Jannat, this is not Jannah. Allah is not talking about Jannah. Jannah word is in Quran in chapter number 7 already, right? So we So are it's not talking about basically, heaven, we are talking about sky. oh, so in translation, they made something wrong. You're No, it's telling not about that. wrong or right, it's the way they use the word. It doesn't make any difference. It's how you use the Oh, word. It doesn't matter. You just need to know what word they are using for what Arabic word and full stop. That's it. oh well, that's a So do you pretty still good. think this verse talks about so-called Big Bang theory? Uh, it's something like explosion, yeah, maybe. Still It's maybe. talking about what? Okay. If you still think maybe, then read the next part. And then we separated them. Allah separated the sky from the earth. How is sky separated from earth, sir? No, it is not. It's still in the earth. It is not separated from the earth. And made from
water every living thing? Did Is every living thing made out of water, my friend? Kulli shay. Arabic is very clear over here. It says waja'alna minal ma kulli shay. Kulli. Absolutely every shay which is high, which is living. Do you think every living thing is created out of water? Water. I've seen some kind of things. I don't do any kind of research on my own, but I've seen some kind of things like every living creature and everything, like non-living, like materials, have some kind of little bit water in it. Yeah, so is every living thing created of water? Yeah, It's not little bit water. It tiny is it is amount, like Okay, let's look into the Quran. Quran says that Allah created the jinn with fire. Why is Allah contradicting himself? well, but still, like in science, they Jinn say is a living that being. yeah, we didn't see the jinn. We didn't do any kind You of don't need to research see the about jinn. the Allah jinn. says in Quran, kulli shay. You don't need to see the jinn. The whole idea is we are talking about Quran, not the science right now, because science is created by infidels. You cannot take their opinion unless it is different. If it goes with the Quran, then you can take it. If it goes against the Quran, you cannot take it. So the whole idea is jinn. Allah says in Quran, Allah created jinn with smokeless fire. Oh, that's So if yeah. Allah said that He created jinn with smokeless fire, how can Allah say here kulli shay, every single living thing He created with water, whereas He contradicted Himself that He created jinn with fire? Oh well, that's kind of sus. Yeah. What do you have to say now? Yeah, I have no words. I need to do What some about kind what of about research. angels? Allah says Allah created angels with nur. Nur. You can't compare angels because No, we he can, said because that. these are angels are living things. Allah says in Quran, "Kullu nafsun zaikatul maut." When Allah says in Quran, every nafs will taste death. This includes the angels and the jinn as well, because they also have nafs, so they are high. High means living, so they are living beings. So angels are also living beings. Allah created angels as well. Allah created angels. Allah said every living thing that He created with ma, which means water. Whereas Allah in the Quran actually contradicted Himself. He created jinns with smokeless fire, then He created angels with nur. Oh well, yeah, but maybe he created angels and jinn before the Before explosion, this, the no, He did heavens not. and the. He did not. He did not. Allah only created angels and jinns before mankind. That's it. Oh well, That's yeah, it. but so this verse. So I got the clarity. This verse is saying It is not after talking about the. mankind. It doesn't say insan. It doesn't say lisan. It talks about kulli shay high. High means Yeah, living. Jinns are it high. doesn't. Angels are high. So it does not matter how you take it, because this is a clear contradiction in the Quran. Oh, it doesn't say Because anything like Allah was inside or alone. something. Allah was alone, right? Yeah, absolutely. So But when He yeah, yeah, created it the does. creation, when He created this creation, when He created this in Samawat wal Arz, then He created Samawat wal Arz, because the angels and the jinn has to be in some Samawat. It has to be in some sky. It has to be in some heaven, no matter how you may like to call it. Unless the heaven is created, jinns cannot be created. Unless the heaven is created, angels cannot be created. Unless the earth is created, jinns cannot be created, because jinns were on the earth, angels were in the sky. So unless these two things are created, Allah cannot create angels and jinns, because where will He place them? With Himself? No, He cannot place them with Himself. That's the arsh of Allah. Only Allah can stay in His arsh. So Allah has to first create the samawat and the earth before He could create the jinn and ins and the angels. So this is why until this is created, no human being, no living being is created. Then Allah says He created every living being. Kulli shay hai. Hai means living. Kulli shay, every living thing. Min ma, with water. That's a clear contradiction in Quran, my friend. Yeah, that's also a great explanation. Thank you, my friend. Appreciate it. Yeah, Apart from thank you. this, Ishaq, Yeah, we also take a small test of those people who join our stream. For the first time. So, yeah, yeah. He said yeah, the you need to know about my
Yeah, I'll No, just say the recite Quran. some surah. Yeah, recite some surah. Yeah, I'll do. I'll do Nas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Uh, Alhamdulillah. yeah, Alhamdulillah. So you are talking about the jinn. yeah, MashaAllah. yeah. So what do you think Well, now? We have shown you some contradictions in Quran and the so-called Big Bang theory, which you were talking about. It's not even matching. oh well, yeah. I can't come to clarity. I need to do some kind of research, and I need to discuss this something about it. Then I'll do. I'll come back to your So stream please and take your explain it. time. Please take your time, do some research, and if you still think that the Big Bang theory is mentioned in Quran and there is no contradiction what Adam has shown to you, you can rejoin and you can have discussion with us. Or any other Yeah, topic that yeah, you want to discuss that can prove yeah. Islam. Yeah, absolutely, brothers. I'll be back soon. In Thank very you Perfect. so soon. much for joining, Ishaq. This stream is only Yeah. on Tuesdays and Fridays. So remember, tomorrow the stream won't be there. So Tuesdays and Fridays. And Oh, okay, Saturday. okay. And I'll Saturday be on there. my I'll be channel. there. And Saturday is on my channel, not on this channel. It will be on other channel, Adam Seeker Urdu. So there is another channel called Adam Seeker Urdu. So me and Sahil, you will find us in Adam Seeker Urdu on Saturday. Otherwise, on this channel, you can come on Tuesdays and Fridays. Yeah, I'll be in your channel on this if I have the time. And thank All you right, for brother. the great explanation. Thank you So Thank you, very much. brother. even if you don't find the explanation, even then you can join and tell us that there are contradictions in Quran, and then you can decide what you have to do, whether you need to remain in this religion or you want to come out of this. Oh well. Yeah, I'll meet you. Sure, we'll wait for you. Maybe. Yeah. See you. Thanks a lot for joining. Yeah. Okay. Thank you, dear. Bye bye. It was a nice discussion, yeah. मजा आया. हाँ, जलेबी ज्यादा नहीं बनाया इन्होंने. हम्म. That was a good thing पढ़ा actually. लिखा था ना वो, उसने देखा, उसने कहा हाँ यार, उसने थोड़ा सा करने की कोशिश किया, लेकिन आफ्टर एक्सप्लेनेशन ही अंडरस्टूड. उसने कहा ठीक है यार, इस तरह के लोग अच्छे होते हैं, इसलिए वेस्ट में बात करने का मजा आता है यार. सीधी सीधी बात करते हैं, यूजुअली जलेबी कम और बनाते हैं. यहाँ हमारे वाले सस्ते अरब जो है इतनी जलेबी बनाएंगे, इतनी जलेबी बनाएंगे, इतनी जलेबी बनाएंगे कि डायबिटीज जिसको नहीं होना है उसको भी हो जाएगा. साहिल साहब अच्छा, दवाई खाएं रोजा थोड़ी सी, सांस खराब. रोजा जी को मैंने अभी स्ट्रीम में लिया था, लेकिन रोजा जी आप डिस्कनेक्ट हो गई, तो अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है. आई एम रियली सॉरी. ये ओवेस फिर से ज्वाइन किया है, इससे लास्ट ये कॉलर रहेंगे. अनामिका जी. अच्छा, अनामिका जी चली गई, मुझे नहीं पता क्यों बार बार ज्वाइन हो रही है, मैंने 2-3 बार इनको निकाला था. हाँ भाई ओवेस. ओवेस अनम्यूट कर ले भाई. अच्छा, प्लीज मेरा क्लिप काट देना. मैं ओवेस सिद्दीकी, मेरी लाइट चली गई थी. अरे तो अभी जुड़े हो, बात करने के लिए जुड़े हो ओवेस साहब, या किस लिए जुड़े हो? चला गया है बंदा. दिक्कत हो गई थी. ये ये मुफ्ती मुफ्ती साहब कौन इस्माइल है? तो मुफ्ती नहीं रहेगा, ये 2 नंबर रहेगा. 2 नंबर रहेगा. हाँ भाई. यार गालियां निकालने के बाद बात ही कर ले यार थोड़ी सी किसी दिन. क्या हो गया? ओह माय गुडनेस. डीडी रूपक. ये तो हिंदू नाम है. हाँ, बार बार मैं निकाल रहा हूँ, जुड़ते जा रहे हैं. जी भाई, डीडी भाई. हेलो भाई, हम मोमिन है. बांग्लादेश से हो. नहीं हाँ नहीं, लेकिन नहीं तो मोमिन थर्सडे नहीं ज्वाइन हो. करिए सर. थर्सडे ज्वाइन करिए. थर्सडे. 12:30 अच्छा नून. भाई, आपका स्टेम खूब बहुत अच्छा लगता. मैं बांग्लादेश से हूँ. ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच सर. देखते रहिए. अच्छा ठीक है ठीक है. अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या. यार ये कौन चला रहा है यार मीम्स? चलो, ये लास्ट कॉलर है सैयद अशरफ. पूरी कोशिश करते हैं बेचारे सैयद अशरफ भाई हमेशा इस्लाम को साबित करने के लिए.
लेकिन बेचारे कभी कर नहीं पाते, यहाँ से वहां भागते हैं। अगर इस्लाम पे बात नहीं करेंगे तो हमको आज भी इनको मजबूरन मजबूरन निकालना पड़ेगा। जी सैयद अशरफ साहब। साहिल भाई, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो शायद नेट में प्रॉब्लम था, या फिर मैं सोचा आप निकाल दिए होंगे या फिर बैन कर दिए होंगे, इसीलिए सोच रहा था। तो टॉपिक में आ रहा था ठीक, बात, इसीलिए। तो मैं इस्लाम कह पे रहा बात था कि करेंगे। हाँ हाँ, वही जो कुआं के बारे में बता रहा था, वही तो कंप्लीट नहीं हुआ ना। तो मैं कह रहा हम्म। था कि आप मौजज़े पे यकीन करते हैं कि नहीं करते हैं? तो यार ये बुदा के मौजूजा है। कुएं में मौजज़ा क्या है, पहले वो बताएं मुझे। जैसे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया मैंने यूसुफ बताया को था छोड़ें, कि यूसुफ को देखो, छोड़ें, वो मौजज़ा है, उसको मैंने उसको पीछे रखें। मोहम्मद ने हाँ, बुदा के गंदे पानी से वजू किया, इसमें मौजज़ा क्या? आपने इस पानी को गंदे पानी बोल रहे हैं, क्या वो हाँ वाकई जी में गंदे पानी था? सर, जिस पानी में कुत्ते गिरे। संडास वाला और वो टट्टी वाला पानी गंदा नहीं होता है तो साफ होता है मेरे प्यारे भाई। संडास क्या होता है साहिल? टट्टी। तो अभी भी कुआं टट्टी। होगा ना वहां पे? महाराष्ट्र वहां पे में अभी उसको भी संडास वो कहते कुआं हैं, टट्टी को। गू को। वो कुआं अभी भी वहां पे होगा ना? नहीं, वो कुआं अभी भी वहां पे नहीं हो सकता, क्योंकि वो कुएं जो है ना, एक टाइम में अपनी एज खत्म करके ड्राई ऑफ हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं। कुएं सारी उम्र रहते नहीं है। कुएं बड़ी एज होगी कुएं की तो वो सिर्फ 20 साल भी नहीं होगी, 30 साल होगी, खत्म। जब कुएं का पानी नीचे की स्ट्रीम से आता है, नीचे की स्ट्रीम, अर्थ की नीचे की स्ट्रीम अपनी जगह बदलती रहती है। कुएं फॉर एवर नहीं रहते। आर यू एन इडियट? कुएं कैन नॉट रिमेन फॉर एवर। तो और फिर अभी अगर है तो ढूंढ के अभी निकाल ले भाई तू खुद। और जब और अभी बाय द ढूंढ वे, के मैं निकाल हाँ, ले। अब बाय द वे, अगर जब अगर कुआं है भी और उन्होंने अब लोगों ने उसमें से टटियां निकाल दी और उसके अंदर टटियां फेंकना छोड़ दी और कुत्ते फेंकने छोड़ दिए और उसके अंदर मेंसेस क्लोथ्स फेंकने छोड़ दिए, तो ठीक है, वो साफ भी हो जाएगा। उसमें टटियां निकाल लो, इवेंचुअली क्लीन निकालते जाओ, वाटर निकालते जाओ गंदा, तो इवेंचुअली नीचे से साफ पानी निकलना शुरू हो जाएगा। अगर आप उसमें गंद फेंकना छोड़ दोगे तो इवेंचुअली साफ पानी निकलना शुरू हो जाएगा। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एज वेल। ये भी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर आप किसी कुएं के अंदर जिसका पानी आता जा रहा है नीचे से, अगर आप ऊपर से पानी निकालो नीचे से आता जा रहा है, उसके अंदर गंद डालना छोड़ दोगे और गंद निकाल दोगे उसके अंदर से, तो कुआं साफ भी हो सकता है। लेकिन जब मोहम्मद ने उसमें से पानी पिया, उस वक्त तो वो गंदा था ना। नहीं था ना भाई साहब, तभी तो बोल रहे हैं ना, लिखा अगर हुआ नहीं था। अच्छा गंदा दिखाएं, होता कहां पे कहां पे से पड़ा है कि नहीं गंदा था? चले वो जगह आप दिखा दें। तो आप मुझे साबित कर सकते हैं कि वो गंदा पानी जो है उसमें गंदा पानी अभी था? तो आप तो दिखाया साबित नहीं कर आपको सकते। स्क्रीन पे, दोबारा दिखाऊं? अरे बाबा, वो तो वो उसमें लिखा क्या है कि उसमें बताया गया कि उसमें डाला जाता था, पहले हाँ, से तो डाला मोहम्मद को जाता वहां था। से पानी ला के दिया जा रहा है। हाँ, तो जिस टाइम वहां से यूज किया जाता है वजू के लिए, उससे पहले हो सकता था बंद कर दिया हो, नहीं डालता नहीं हो। नहीं अरे नहीं, वैसा नहीं, वो नहीं है, हदीस उसी वक्त पढ़ो। की बात हो रही है। उसी वक्त की बात हो उसी रही है, वक्त की बात हदीस हो रही पढ़ो। है। ये देखो, दोबारा से तो पढ़ते हैं, ये देखो। वाटर लाया जा रहा है बुदा से, जिसमें सब कुछ पड़ा हुआ है इस वक्त। I heard the people ask the Prophet of Allah, water is brought for you from the well of Buddha. It is the well which is in which, जिसके अंदर उस वक्त कुत्ते मरे हुए पड़े हैं, मैच्योरेशन क्लोज पड़े हैं, एक्सट्रीमिनेंट्स पड़े हैं। भाई ये पास्ट नहीं बता रहे वो, ये उसी वक्त की बात हो रही है। क्योंकि मोहम्मद ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वेरली वाटर इज प्योर एंड इज नॉट डिफाइल्ड बाय एनीथिंग। उन्हें कहा कि यार वाटर जो होता है वो हमेशा प्योर होता है, वो किसी भी गंदगी से डिफाइल ही नहीं होता। जाओ। Buddha, it is a well. It is a well अच्छा in एक एक मिनट, हाँ, ये एक प्यारे प्रेजेंट भाई टेंस एक है। मिनट रुकना। जी जी एक सर। एक मिनट। एक रोजा मिनट, जी एक कह रही आई वांट टू ज्वाइन बट साइड बैक स्टेजिंग मी। अरे रोजा जी, मैंने तो आपको स्ट्रीम में लिया था, आप क्या झूठ डिस्कनेक्ट बोल हो रही गई। आप है ऐसे क्यों कर रही कि मैंने आपको निकाला? साहिल भाई, टाइम वेस्ट कर तो रही है वो, उसने आना नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। फिर उन आपका डिस्कनेक्ट हो गया, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने आपको स्टूडियो में लिया था, आपका नंबर था, आप चली गई। आप फिर से ज्वाइन करिए, हम ले लेंगे आपको। हाँ ये सॉरी, देखिए। बोलो भाई सैयद अशरफ पढ़ो। हाँ, यार सही आपको साहब। प्रेजेंट पास्ट ये और फ्यूचर टेंसेस का पता है? हाँ, पता है। ये जो ओके, थ्रोन लिखा है, अगर थ्रोन इज का हो, मतलब क्या है? अगर इज हो तो ये प्रेजेंट टेंस होता है, कौन सा टेंस होता है? हाँ, प्रेजेंट टेंस होता है। ओके, तो जब मोहम्मद के लिए पानी निकाला जा रहा था उस वक्त प्रेजेंट टाइम में, उस वक्त के प्रेजेंट टाइम में उसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ?
तो प्रेजेंट के बाद जो वर्ब होता है उसमें आईएनजी भी होता है ना, तो कंटिन्यूअस होता है ना तभी, वो नहीं तो प्रेजेंट कैसे होएगा? कंटिन्यूअस टेंस होता है गधे। यहाँ पे बात हो रही है प्रेजेंट के अंदर कि जब कंटिन्यूअस वाटर नहीं है ब्रॉट ना। किया जा रहा है, वाटर इज ब्रॉट, उस वक्त इट हाँ इज अ वेल जिसके अंदर ये सब कुछ है, जिस वक्त वाटर ब्रॉट किया जा रहा है। सिंपल अंग्रेजी, अंग्रेजी नहीं आती तो जाके अपने मास्टर से सीख। यहाँ पे 2 नंबरी ना झाड़, मेरे ओके। पास टाइम वेस्ट ना कर मेरा, जाके मास्टर से अंग्रेजी सीख ले। अरबी अरबी दिखाइए, अरबी वाला दिखाइए। अरबी अरबी अरबी, और मेरा प्यारा भाई अरबी अरबी देखेगा, ये ले मेरा प्यारा भाई, ये ले। जी सर। वह हाँ हुआ ये कॉल वो जी, पढ़िएगा। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा हाईलाइट करिए आप, ब्लू पूरा पूरा हाईलाइट करिए। पूरा वाया हाईलाइट को करके ले उसके लो। बाद से, उसके बाद ये से ले पूरा सर, करिए ये ना। ले, कर दी हाईलाइट। वाया मेरा प्यारा भाई हाईलाइट में पड़ेगा। अरे पढ़ तो सही भाई। एकदम छोटा छोटा है ना, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा हूँ। इतना छोटा है? वाहिया इतना छोटा अगर किसी और के अंदर चला गया तो गेम खराब हो जाएगी भाई। वाहिया बिर यल फीहा। ये अरबी पढ़ेगा जिसे अरबी पढ़ी नहीं जा रही। सही, ये ट्रांसलेशन खुद करेगा जिसे अरबी पढ़ी नहीं जा रही। सच में बहुत छोटा छोटा है मोबाइल में, आप कंप्यूटर में शायद देख रहे होंगे बड़ा बड़ा, मैं वहुवा तो युकालु लहू समझ इन्नहु नहीं आ रहा। युस्तकलका मिम बि'रि मिम बि'रि बुदाअता वहिया बि'रुन। यार हाईलाइट मत करो एडम, मैं पढ़ के इनको दिखा देता हूँ। यार मैं जूम कर देता थोड़ा सा और इनके लिए, साहिल भाई कोई मसला नहीं है। देखें, ये इससे ज्यादा जूम मैं नहीं कर सकता, ये मैं हाईलाइट भी छोड़ देता हूँ। ये ले, हाँ, हाँ, यकुलु लहू इन्न यकूलु नहीं है, इन्नहु, यस्तकीलहू। युकालु है। युकालु वहुवा युकालु लहू। इन्नहु। इन्नहू। उसके बाद आप आगे, पढ़िए थोड़ा, मैं भी हाँ, मैं युस्तकलका मिन बि'रि बुदाअता वहिया बि'रुन युल्का धीरे धीरे पढ़िए, फीहा। थोड़ा धीरे। और धीरे, बदाता। अच्छा। यार वहुवा टाइम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे युकालु हो साहिल भाई? ही इज लहू। वेस्टिंग टाइम, ही इज वेस्टिंग टाइम, हाँ, व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम? अगर आपको तो अरबी एक सही बार पढ़नी नहीं आती, आप ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? हाँ, तो व्हाई आर यू अरबी वेस्टिंग आता है टाइम? ना, तभी टाइम वेस्ट क्यों कर रहे तभी हो? तो देख रहा हूँ। तो नहीं, पढ़ो ना फिर। पढ़ना आना और समझना नजर आना दो नहीं आ डिफरेंट चीजें रहा होती हैं। है। मैं ओके, मोबाइल नजर पे आने की जरूरत हूँ। भी नहीं है भाई। जाओ मेरे बच्चे, खत्म हो गए हैं आप। हाँ तो मैं कह रहा हूँ, इंग्लिश का जितना है ना वो ग्रामेटिकली परफेक्ट अरबी के साथ मैच करके नहीं बनाता है, कभी कोई चल कोई मेरा बच्चा, सारे गेट लॉस्ट हाँ, हो राइटर। जा ये तू, पागल लोग है। गेट लॉस्ट हो जा, ये सुनिए पागल गेट लोग है लॉस्ट हो सुनिए, जा। सारे। और उसमें सारे देखा भी ट्रांसलेशन जाता करने है। वाले पागल लोग वजह हैं। से आपके लिए पानी लाया जाता है, हालांकि वो ऐसा कुआं है कि इसमें कुत्ते के गोश्त, हेज के कपड़े और लोगों के पाखाने डाले जाते हैं। सेम डाले चीज जाते हैं। है थे नहीं है। पानी लाया जाता है, प्रेजेंट टेंस में है सारा। पाखाने डाले हम्म, जाते हैं। नबी पाक ने हम्म। फरमाया पानी साफ है तो कोई चीज नापाक नहीं करती। बाय बाय टाटा। जाएं भाई, उर्दू इंग्लिश तो हर जगह पे यही है। अरबी आपको अंब पता नहीं है, आप जो है ना जाके अरबी सीख लें, फिर अपनी मर्जी की ट्रांसलेशन करते रहना। अभी आपकी सुनिए ये चीज सही हो गई है। साहिल जो भाई, नबी टट्टी साहिल साफ भाई, कराने का तरीका बताता है, वो टट्टी को अपने मुंह में लेता है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। सुनिए साहिल भाई सुनिए, ये जो है ना, दिल्ली में अजमेर शरीफ जानते हैं आप? 2 रुपये मुंह तेरे थे। हाँ अजमेर ठीक है, शरीफ अजमेर शरीफ जानते हैं? से क्या है? तो अउलिया पे मानते हैं, अउलिया? अरे औलिया का और ये टट्टी वाले पानी का क्या लेना देना भाई? सुनिए, अउलिया जो मुंह से कह देते हैं एक बार वही होता है, उनका मुंह का अच्छा। बात अल्लाह कभी रद्द नहीं करते हैं, मालूम है आपको? तो हमारे हाँ हाँ। नबी सबसे बेहतरीन इंसानों में से सबसे बेहतरीन है, तो ये वो टट्टी वाला पानी मुंह में उन्होंने लेते जब थे। कह दिया तो वो टट्टी का पानी नहीं होगा ना। आपको लगता है कि उसके अंदर टट्टी है, पर वो टट्टी नहीं होगा उसमें। पानी जो अच्छा, मेरे निकाल को एक लेते बात थे, बताओ। तो अगर अगर मोजिजा, पैगंबर मौजिजा सुनो नहीं सुनो दे, सैयद पैगंबर, अशरफ, सुनो। हाँ हाँ मोजिजा तो ये होना चाहिए था कि वो कुएं के पानी से ये सारी गंदगी निकल जाना चाहिए था, एकदम पाक साफ पानी बचना चाहिए था। बाकी ये जितनी चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली उसमें से गायब हो जाना चाहिए था। तो आप उसको कह सकते हैं कि भाई ये मोजिजा मिरेकल करामत हो गई। यहाँ पे तो टट्टी भी है और उसके बाद वो मेंस्ट्रुएशन के कपड़े भी है
उसके बाद वहां मरे हुए जानवर भी पड़े हैं, तो ये कौन सा मिरेकल है भाई? वो डाला डाला जाता था, बोला है ना, डाला जाता था। अभी डालने के बाद था हाँ, हम लोग नहीं है, पानी खोते हैं, तो डाले डाला जाते जाता हैं। मौजूदा तो फिर अच्छा अच्छा, तो ठीक है, ओ इसमें अगर भाई मौजूदा अगर आप मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मतलब अभी मौजूदा आप इनके मानते ही पास, नहीं है ना। भाई एक आप मिनट एक मौजूदा मिनट, चीज सही नहीं है सर। मानते। हाँ मैं नहीं मानता हूँ, मुझे एक्सप्लेन करो, नहीं मानता हूँ मैं। तो देखिए, अल्लाह कुरान में कहे हैं कि हम औलिया, उनके प्यारे जो हो, अल्लाह जिससे मोहब्बत करते हैं, उनके दुआ कभी रद्द नहीं करते, उनके बाद कभी कहाँ जो है, है गलत कहाँ नहीं लिखा करते कुरान हैं। में? कहाँ कुरान में है, कहाँ लिखा है? कहाँ है? दुआ नहीं, मैं रद्द नहीं साबित करते, नहीं कर किधर है? सकता क्योंकि कुरान में हम पढ़े हैं, पर यह है उतना याद तो अच्छे एवी से बिला नहीं वजह है। झूठ आप बोली जा रहे साबित हो। नहीं कर सकता। देखिए, आप लोग 24 आवर्स इसी में लगे हुए हैं, D तो इसीलिए A जो है इसी N में G E R O U S डंगर तो दूसरा कोई टॉपिक, दूसरा टॉपिक लाइए। अब ये नहीं नहीं, दूसरा मुआजिजा के टॉपिक क्यों? सिवा, हाँ, तो ये मुआजिजा के सिवा कुछ और बात ही नहीं है ना इसमें, और कुछ नहीं बात बचता है। तो अगर आप यही तुम्हारे मुआजिजा पास पे, जवाब है कि ये मोजिजा है। यही तो मुआजिजा है कि एक ही वो सारे कुआं के बारे में होता, तो कुआं का नाम नहीं कहा जाता स्पेशली। स्पेशली नाम क्यों बोला गया बदा का कुत्ते कुआं? में कुत्ते ये तो सारा कुत्ते और उसमें वो टटियां नहीं प्रॉब्लम डाली था। जाती हर अबे यार डंगर, हर कुएं में, वो भी सहरा के कुएं में, हर कुएं में जहाँ कुत्ते और टटियां और पखाने डाले जाते हैं, क्या पागल हो गए हो? अरे क्या यार, यार, हमारा तुम बच्चों उधर वाली भी बात कर रहे कुआं हो? है, हमारे उधर भी कुआं है, उसमें कीड़ा बन जाता है, तो उसमें हम लोग जो है बन भाई मेडिसिन जाना जाना डालते हैं। अलग है। ए भाई भाई हाँ, भाई, कीड़ा बन जाना अलग है और उसमें गंदगी डालना अलग है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अरे बाबा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डालता नहीं है या डाला नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि हमारे नबी जब कहे हैं, मुंह से एक बार कह देते हैं कि ये है, हम सही कुत्तों से सच है, बात तो ये नहीं सच। करते। कौन इतना मीम के मूड में है भाई, थोड़ा रुक जाओ। हाँ सही है सर। अगर अगर अल्लाह अपना पैगंबर का दुआ नहीं, बात नहीं सुनता, बात नहीं कबूल करता, तो वो पैगंबर ही क्या भाई साहब? तो फिर पैगंबर हम मान नहीं सकेंगे अगर उनका पैगंबर मौजूदा ने को नहीं। यहाँ पे क्या दुआ की है? उसको साफ कराया, उसे कहा है साफ हो जा, कोई मौजूदा दिखाया? वही तो मौजूदा है, बिना साफ किए ही वो पानी सही है। उस टाइम आप जाके रिसर्च टीम भेजिए, फिर जाके चेक साहिल करिए उसमें क्या कीड़ा मैच आ रहा है कीड़ा चल भाई, है भाई, कि नहीं। बहुत शुक्रिया भाई, सही है मैच आ रहा है दशरथ, भाई, थैंक यू बात सो वेरी होती मच है भाई। यार। यार जाहिलों से दूसरा बात नहीं हो टॉपिक सकती लाइए, यार। अब दूसरा टॉपिक लाइए। नहीं, कोई आज के टॉपिक लिए नहीं तो चाहिए आपसे। काफी है भाई, 7.5 घंटा है, खत्म करना है अरे इसके ये। जहन में कुछ ज्यादा ही जंग लग गया है। उदाहरणा बिल्कुल मुश्किल बिल्कुल, है बहुत ज्यादा अपंग हो चुका है ये। कि औलिया कराम वगैरह को मानने वाला है। असली में जो अजमेर हाँ की बात कर रहा है ना लाला जी, वहाँ पे ना एक तालाब है, तालाब में उसी में नहाते धोते हैं, उसी में बहुत सारी बीमारियों के लिए शिफा की बात करते हैं, और पानी बिल्कुल ब्लैक, हाथ में लीजिएगा तो आपको गंदा लगेगा, उसको पीते हैं और सर वो कहते हैं ख्वाजा साहब इसमें शिफा देंगे, तो कोई अपंगता इनके अंदर भरी पड़ी, समझाना बेकार है कुत्ता ही पीता होगा ना उसको यार, इंसान तो नहीं पीते होंगे। हाँ, इन जैसे इंसान पीते हैं ना। ओके बस फिर ठीक है। सही है यार, चलो कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं, उसके बाद फिर स्ट्रीम को क्लोज करेंगे, काफी वक्त हो चुका है। राजू भाई कह रहे हैं गूंगा मोमिन 3 बार पाद मार के तलाक देता है क्या? हैं? क्या क्या वाइल्ड इमेजिनेशन है भाई आपके। प्रवीण सिंह, इफ द फर्स्ट ह्यूमन एडम एंड हवा वाज क्रिएटेड विद मड बाय अल्लाह, देन द होल ह्यूमन रेस इज मेड ऑफ मड, सो दिस आल्सो कॉन्ट्रडिक्ट्स अल्लाह's वाटरी थियरी। यार इसमें भी बहुत ये लोग है ना जलेबी बनाते हैं, मर्ड जो है उसमें भी पानी होता है, इस तरीके की बातें करते हैं ये लोग। अच्छा साहिल अभिषेक साहब, कह इससे रहे पहले का आपने जो पढ़ा था उसमें है कि अगर आपने 3 उंगली सीधी दिखलाई अपनी वाइफ को और कहा तुझे तलाक, तो हनफियों के नजदीक 3 तलाक हो जाएगी। उल्टी उंगली दिखाई 3 तो 1 तलाक पड़ेगी। एक बार सर आपने बाप रे। कहा है और उंगली 3 दिखलाई तो 3 ये तलाक। देखें, ये देखें जरा, ये देखें, ये देखें जरा, ये देखने वाली चीज है। ये देखें जरा, ये देखें जरा, एक बंदा पौंध हो रहा है और उसके साथ जो उसके साथ वाला बंदा है, ये पौंध हो रहा है और साथ वाला बंदा मुंह में पानी ले रहा है। सर इतनी तो बगैरती है इन लोगों की यार। भाई भाई मैं कसम से बोलता हूँ,
ये मुंबई में भी कुछ मस्जिदों में ऐसे ही चलता है। ऐसी जितनी मस्जिद रहती थी मेरे को इतनी घिन आती थी। जामा मस्जिद एक है अपना जवेरी बाजार दिल्ली के पास दिल्ली मार्केट में है। तो है ना? हाँ, मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ। मैं वहां चूंकि नमाज पढ़ने जाता था, मार्केट जब जाना होता था, अगर जुम्मा के दिन मैं मार्केट जा रहा हूँ कभी, तो या फिर बाकी टाइम पे भी नमाज का टाइम हो गया तो वो जामा मस्जिद में चले जाता था। बहुत बड़ी मस्जिद है, जवेरी बाजार के बाजू में है। वहां पे वो इसी तरीके का जो है पानी का ये है, तो वहां पे वो लोग वहीं पे खखार के थूकते हैं भाई, कुल्ली करके। और वहीं और से उसमें दोबारा पानी पैर लेके भी धो दोबारा रहे कर हैं, लेते हैं। और वो बाजू में उसी में से लेके मुंह में डाल के कुल्ली कर रहे हैं। भाई इतनी घिन आती थी, कभी मैं उस पे जाके वजू नहीं करता था। वहां पे जो बैठ के जो वजू करने का रहता था मैं उस पे करता था। वो तो इसलिए ये कि मोहम्मद ने कह दिया ना पानी साफ है। इसीलिए तो कांड चलता रहता है। और अपनी सिटी में भी ये इसको हौस कहते हैं। हौस काफ़ी हाँ, अच्छा हाउस है, कहते हैं। मस्जिदों में बना रहता है, उसी में पानी लेंगे, कुल्ली करेंगे। हालाँकि उसमें नहीं थूकते, मेरे यहाँ जो है, बाहर ही थूकते हैं, लेकिन पाँव इसी तरह धोते हैं, अंदर पाँव डाल के। अजीब है यार, अजीब। अच्छा, वो जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ना, वो हाउस का तुम सही बोल रहे हो। हाउस का जो है वो बाजू में एक ये रहता है, नाली नाली की होती तरह है। बना रहता है, हाँ। हाँ, लेकिन जो वो जो जामा मस्जिद की बात कर रहा हूँ उसमें तो उसी में थूकते भी है भाई। अच्छा, अच्छा। तो ये जो वीडियो दिखाई उसमें भी तो उसी में थूक रहा था वो बंदा कुल्ली करके। हाँ, दिखाओ दिखाओ, मुंह फिर धो से गया। दिखाओ एक बार। फिर हाँ, एक बार दिखाऊं और। यार, तीसरी बार देखना यार। फिर से उसी दिखाओ। में तो और ये दूसरों को साफ सफाई का ज्ञान देते हैं ये। सर वो उसी में थूकने लगा हुआ है। मैं कहता हूँ यार कमाल है। ये देखे, मैं आपको हैंडल थोड़ा दिखाता हूँ। ये देखे, ये जो बंदा कुल्ली करके मुंह धो रहा है उसके बाद देखे ना कहाँ पे डाल रहा है। ये देखे, ये देखे, ये वाला बंदा वहीं पे कुल्ली मुंह सब कुछ वहीं पे। ये देखे, मुंह में उसने उंगली डाली ये ना, पैर भी दांत सुधर साफ रहा है किए भाई ना, ये। दांत साफ किए। इस लोग देखे दांत साफ किए ना इसने। ये मुंह में उंगली डाल के ये ओहो, अच्छे तरीके से, पता नहीं हलक तक उंगली लेके जा रहा है। कितनी उंगली लेके जाएगा। ला 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 ला, ओ तेरी पूरी खैर हो कौन-सी जाए। खींच लेते हैं वो अंदर। लगा हुआ है उंगली के साथ ही दांतों पे, पता नहीं क्या वो दांत शार्प कर रहा है, क्या कर रहा है। लगा हुआ है, लगा हुआ है। इसको देखना, अब इसको देखना, ये भी कर रहा होगा। इसकी इसकी भोंगी भी देखना। ओह, अल्हम्दुलिल्लाह, 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 माशाअल्लाह। वो देखो एक तो मस्त पैर घस रहा है वाला। हाँ, और ये वाला भी मुंह से कुल्ली कर रहा है। ये देखो, इस वाले को देखो, पीछे वाले को। ये इसको देखना, इसको ये देखना, ये बाबा जी ये कुल्ली उंगली कैसे घसीट रहे हैं यार। ओ तेरी खैर हो जाए। ओहो, ओए होए होए होए। यार, यार साहिल सीरियसली मैन। और ये दूसरे को साफ सफाई का सबक सिखाएंगे। अच्छा, सिर्फ़ उसमें भी है, वज़ू में एक तरीका है कि आप सिर्फ़ पाँव ये नहीं धो दिल्ली है सकते। यार, 1909 का दिल्ली है वैसे। उँगलियों के दरमियान जो खला होता है, उसको भी साफ़ करना ज़रूरी होता है, उसको मसा कहते हैं, ताकि उसमें जो वाह भाई गंदगी वाह। है, वो भी निकल जाए। हो, देख रहे हो मोमिनो, थोड़ा सोचो यार, समझो, क्यों इतने दिमागी अपंग बन के बैठे हो।